Assalamu alaikum and hi. In today's video, we are going to discuss about a very important viral infection, which is varicella zoster virus infections. This is a common clinical picture, a clinical scenario of a condition caused by varicella zoster virus. Just read the statement. Jones, a 65-year-old man, presented to his doctor the painful burning sensation on the right side of his chest. A few days later, he develops a rash in the same area. On examination, you observe a cluster of vesicles on erythematous base following a dermatomal distribution on the right side of the chest. Jones reported that he had chickenpox as a child. What is the most likely diagnosis? देखो एक हमारे पास एक क्लिनिकल पिक्चर है जिसमें पेनफुल बर्निंग सेंसेशन है, प्रोड्रोमल सिम्टम्स है, जिसके बाद हमारे पास क्लस्टर्स डेवलप हुए हैं वेसिकल्स की और उसके जो एरिथेमेटस बेस है, लेकिन एक यूनिक फीचर है जिसने डर्माटोमल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो किया है। इसके अलावा ये पेशेंट जो है ऑलरेडी चिकन पॉक्स से सफर्ड हुआ है, तो ये कौन सा डिजीज है, कौन सा कॉम्प्लिकेशन है, अब मैं नहीं बताने वाला। वीडियो के एंड में आप ये खुद ही बता सकोगे कि ये कौन सा इन्फेक्शन है और क्यों इस तरह है। इस तरह जितने भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो आप एंड में इजीली पिक करेंगे, इजीली आंसर करेंगे। देखो ये क्लिनिकल पिक्चर है। हमारे पास टंग है जो कि टंग का एक ही साइड इन्वॉल्व हुआ है, मिड लाइन को क्रॉस नहीं किया। सो दिस इज द क्लिनिकल पिक्चर ऑफ वेरिसीला जोस्टर वायरस इन्फेक्शन। बट व्हाट इज दिस, व्हाट डज इट कॉल्ड, ये वीडियो के एंड में आपको मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा। जब आप ये वीडियो वॉच करेंगे एंड तक तो आप खुद ही ये क्लिनिकल पिक्चर गेस और प्रेडिक्ट करोगे। दिस इज अनदर क्लिनिकल पिक्चर ऑफ वेरिसीला जोस्टर वायरस इन्फेक्शन। लेकिन क्लिनिकली आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि ये वेसिकल्स आपके पास हंड्रेड्स ऑफ वेसिकुलर डिजीजेज है जिसमें वेसिकल्स होते हैं ओरल कैविटी में और इन द और ऑल द बॉडी। आप क्लिनिकल पिक्चर से सिर्फ क्लिनिकल पिक्चर से आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, लेकिन जब आपके साथ बैकग्राउंड नॉलेज होगा तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, डिफरेंशियल बता सकते हैं, जो कि इस वीडियो के एंड में आप बताओगे। अच्छा, contents of today's video is introduction to varicella zoster virus infection, varicella zoster virus, varicella zosters. Varicella is also called chickenpox. Zoster is also called herpes. um, uh, herpes. अच्छा, clinical features and diagnosis, treatment, assessment questions। इसको herpes zoster भी कहते हैं और shingles भी कहते हैं। अच्छा, इंट्रोडक्शन क्या है? Varicella zoster virus is a herpes virus, and like other herpes virus, it causes both primary and recurrent infection and remains latent in neurons present in sensory ganglion. Varicella zoster is responsible for two major clinical infections of human chickenpox and shingles. Varicella zoster क्या है? एक herpes virus है। herpes virus एक DNA वायरस है। ये वेसुला जोस्टर वायरस को herpes वायरस टाइप 3 भी कहते हैं। ये जो कि तीन मेजर का डिजीज काज करता है। वन इज द चिकन पॉक्स एंड द अदर इज शिंगल्स, आल्सो कॉल्ड herpes zoster। चिकन पॉक्स हमारे पास प्राइमरी इन्फेक्शन है, शिंगल हमारे पास रिकरेंट इन्फेक्शन है herpes वायरस टाइप 3 की। Chickenpox is generalized primary infection that occurs the first time an individual contacts the virus. This is analog to the acute herpetic neurostomatitis of the herpes simplex virus. After the primary disease is healed, the residual zoster becomes latent in the dorsal root ganglion of spinal nerves or extramedullary ganglion of cranial nerves। देखो जिस तरह हमने herpes simplex वायरस में पढ़ा था, प्राइमरी इन्फेक्शन था, उसके बाद herpes labialis था जो कि रिकरेंट इन्फेक्शन था। इसी तरह वेरिसिला जोस्टर वायरस में हमारे पास प्राइमरी इन्फेक्शन चिकन पॉक्स है और जो रिकरेंट इन्फेक्शन है जो वो वेरिसिला जो है वो जोस्टर इन्फेक्शन है। In 3 to 5 of every 1,000 individuals, varicella zoster virus become reactivated, causing lesion of localized herpes zoster. Varicella तकरीबन 3 to 5 of every 100,000 individuals में reactivate होता है। ये reactivate क्यों होता है? तो different factors है। The incidence of herpes zoster increase with age. First one is the age, which cause reactivation of varicella and cause herpes zoster. Immunosuppression. Patients who are immunocompromised, immune suppression and immunocompromised are the major cause of reactivation of varicella zoster and causation of herpes zoster. Cancer chemotherapy, immunosuppressive drug therapy, or hematological malignancies have an increased susceptibility to severe and potentially fatal herpes zoster. So these are the different factors or etiological factor which cause reactivation of varicella or the causation of herpes zoster। दोनों सेम मीनिंग रखते हैं। These herpes zoster infection may be deep-seated and disseminated, causing pneumonia, meningoencephalitis or encephalitis and hepatitis.
However, otherwise, normal patients who develop herpes zoster do not have a significant incidence of underlying malignancies. herpes zoster को हम डिटेल से पढ़ेंगे, क्लिनिकल पिक्चर पढ़ेंगे, इफ मे बी फेटल, इसमें हमारे पास पोरापेटिक न्यूरोलजिया है, रेम्स हंट सिंड्रोम है, इसके अलावा हमारे पास डायफ्राम को भी पैरालाइज कर सकते हैं। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। अच्छा, वेरेसिला क्या है? पहले हमारे पास वेरेसिला है, फिर उसके बाद हमारे पास हर्पीज है या जोस्टर है या शिंगल्स है। तो अच्छा, chickenpox is a childhood disease. Remember that it is childhood disease characterized by mild systemic symptoms and generalized intensely pruritic eruption of maculopapular lesion that rapidly develop into vesicles on a erythematous base. देखो यहाँ पर evolving lesions है, means lesions हमारे पास एक फॉर्म में नहीं होते, मेक्यूल्स भी होंगे, पेप्यूल्स भी होंगे, वेसिकल्स भी होंगे, ऑस्ट्यूल्स भी होंगे, तो एक कंप्लीट डाइवर्स पिक्चर देगा जो कि मुख्तलिफ स्किन लीजन्स में जो स्किन लीजन्स के साथ प्रेजेंट करेगा। देखो मेक्यूल्स क्या है, पेप्यूल्स क्या है, और इसके अलावा हमारे पास जो वेसिकल्स क्या है, इस पर एक सेपरेट वीडियो मौजूद है, आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ओरल वेसिकल दैट rapidly change to ulcers may be seen। तो देखो यहाँ पर चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली, एक ही साथ आपके साथ वेरेसिला का पेशेंट जो प्रेजेंट करेगा उसमें ऑलमोस्ट 4 to 5 क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस होंगे, पेपुलर्स भी होंगे, मेक्यूल्स भी होंगे, पॉस्ट्यूल्स भी होंगे और वेसिकल्स भी होंगे। But the oral lesions are not important symptomatic diagnostic or management problem. Clinical features, these are the prodromal phase, fever, malaise, loss of appetite and headache। देखो अगर आपसे सिनेरियो में पूछा जाए कि हमारे पास प्रोड्रोमल सिम्टम्स है, fever है, malaise है और loss of appetite है, headache है, और उसके बाद eruption जो है, जो eruption जो कि evolve कर रहा है और specific pattern follow कर रहा है, itchy है, so at most commonly it is varicella। The clinical pictures क्या है? Rashes. Initial presentation begins as a small red spots macules on the face, scalp, torso, and eventually spread to the entire body. Progression: macules evolve into papules, then vesicles, small fluid-filled blisters, and finally crust over. Distribution: rashes tend to be more concentrated on the trunk than on the extremities. Lesion can also occur in the mouth, eyelids, or genital areas. Itching: the rashes usually intensely itchy। देखो जो हमारे पास जोस्टर के जो एचेज रैशेज है वो हमारे पास पेनफुल होते हैं, सीवियर पेनफुल होते हैं। वेरेसिला के जो विजिकल्स है या जो रैशेज है वो इची होते हैं। All stages of the rashes, macules, papules, vesicle, and crusts can be present simultaneously. Very important. These are the two very important clinical pictures by which you can diagnose chicken pox. This is the clinical picture of chicken pox. You can see there is pustules, also macules, and there are also papules is also present. The child is trying to rub it because it is itchy in nature. This is the clinical picture of varicella zoster varicella infection. Here you can see this is macule discolored skin. This is vesicles, clear fluid. This is crusting. So this is the clinical picture of varicella zoster varicella infection or chicken pox। इसके इस पेशेंट के साथ प्रोड्रोमल सिम्टम्स भी होंगे ऑल ओवर द स्किन। देखो स्किन के भी इन्वॉल्व है इसमें, तो ओरल और एक्स्ट्रा ओरल दोनों, इंट्रा ओरल एंड एक्स्ट्रा ओरल बोथ साइड्स आर इन्वॉल्व इन बोथ साइड है और रैशेज। अच्छा, देखो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है वेनेजुएला रजिस्टर वायरस में जो कि आपने याद रखना है कि इसकी जो रेशेज़ है वो सेंटर से शुरू होते हैं, पेरिफेरी तक जाते हैं। तो आपने ये भी याद रखना है जो हमारे पास स्कारलेट फीवर हुआ है, जितने भी फीवर्स है, उसमें हमारे पास पेरिफेरी से शुरू होके मिड लाइन तक रैशेज़ आते हैं। लेकिन चिकन पॉक्स में मिड लाइन से शुरू होते पेरिफेरी तक जो रैशेज़ है वो स्प्रेड करते हैं। अच्छा, वेनेज़ुएला में जो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं वो क्या हो है? सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ड्यू टू स्क्रैचिंग लीडिंग टू स्किन इन्फेक्शन लाइक इम्पेटिगो। देखो ये इची होते हैं, तो इची नेचर की वजह से हम इसको स्क्रैच करते हैं। जो पेशेंट होता है जो इससे सफ़र कर रहा है वो फिर इसको स्क्रैच करता है। तो हमारे पास जो हैंड्स है या नेल्स उसमें स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस डोमिनेंटली होता है, तो वो फिर इम्पेटिगो कॉज़ करेंगे। Pneumonia more common in adults, especially those who are immunocompromised. Encephalitis, rare but serious complication, Reye's syndrome, very important, associated with aspirin use in children with viral infection। जो हमारे पास सीधा का इन्फेक्शन है, अगर उसमें हम एस्पाइरिन देंगे तो एक फिनोमिना करेंगे जो कि राइस सिंड्रोम्स के नाम से जाना जाता है। राइस सिंड्रोम हमारे पास एक डिजीज है जो कि हेपेटाइटिस लाइक पिक्चर देता है और लिवर को बैडली इफेक्ट करता है। Congenital varicella syndromes occur if a pregnant woman contracts varicella leading to birth defects. So all these are the secondary complications caused by different factors, but the main contributing factor is varicella, which is virus infection, viral infection।
अच्छा, अब डायग्नोसिस ऑफ वेरिसिल हम किस तरह करेंगे? तो क्लिनिकल डायग्नोसिस टिपिकली बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस ऑफ द रैशेस। क्लिनिकली हम किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं? मैंने बता दिया कि रैशेस होंगे जो कि वेरिएशंस क्रिएट करेंगे, मीन्स ये पेप्यूल से लेकर पोस्टीरियर वेसिकल तक सारे वेराइटीज होंगे। इसके अलावा इची भी होंगे। लेबोरेटरी कंफर्मेशन कैन बी डन थ्रू पीसीआर टेस्टिंग, डायरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीबॉडीज, टेस्टिंग ऑफ लीजन स्क्रैपिंग्स और सीरोलॉजी डिटेक्टिंग वेरिसिला जोस्टर वायरस स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबुलिन एम एंटीबॉडीज। तो जिस तरह हम और वायरल इन्फेक्शन डील करते हैं, जैसे लाइक पीसीआर करते हैं, इम्यूनोफ्लोरेसेंट करते हैं, इसके अलावा एंटीबॉडीज डिटेक्ट करते हैं बॉडीज में, तो इस तरह वायरस के इन्फेक्शंस को भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर क्लिनिकल पिक्चर्स और हिस्ट्री से हमें पता नहीं चला, तो हम फिर जो वायरल इन्फेक्शंस के लिए जो अप्रोच अडॉप्ट करते हैं, वही अप्रोच यहाँ पर होगा, पीसीआर, इम्यूनोफ्लोरेसेंस एंड सीरोलॉजी। ट्रीटमेंट क्या है? सपोर्टिव केयर इंक्लूडिंग एंटीपायरेटिक फॉर फीवर, लेकिन एस्पाइरिन आपने नहीं देना, एंटीहिस्टामिन्स फॉर इचिंग, इट विल गिव रिलीफ, एंड सूदनिंग लोशंस ई.जी. पेलामीन। तो ये सारे जो है ये सपोर्टिव केयर है फॉर वेरिसिला जोस्टर वायरल इन्फेक्शन। एंटीवायरल थेरेपी भी देख सकते हैं हम। एसाइक्लोविर इज द ड्रग ऑफ चॉइस, में बी यूज्ड टू इन सीवियर केस और इन हाई रिस्क इंडिविजुअल। नॉर्मली हमारे पास जो ये चिकन पॉक्स है, ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, तो ये खुद ही ट्रीट होता है। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड हो जाए बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर खुद भी रेजिस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो फिर हम एंटीवायरल थेरेपी और एसाइक्लोविर देंगे। Prevention of scratching, keeping nails trimmed and wearing mittens, especially in young children to prevent secondary infection। देखो हमने पढ़ा कि जो हमारे पास जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो सुपर इम्पोज होता है ड्यू टू इची नेचर ऑफ द रैशेज। जो इची नेचर है, तो हम इसको फिर स्क्रैप करेंगे, जो पेशेंट है वो स्क्रैप करेगा, जब स्क्रैप होगा तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, most commonly staphylococcus and streptococcus, which can cause pneumonia and encephalitis or encephalitis, or it may can cause pneumonia. So that's all about varicella। अगर आपने वेरिसीला या चिकन पॉक्स को पढ़ लिया, इसमें आपने कुछ नई बात सीखी, आपने वीडियो को यहाँ तक वॉच किया, तो काइंडली एक फेवर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें सॉरी, और वीडियो को लाइक करें। अब हमारे पास जो दूसरा इन्फेक्शन है वो है ज़ोस्टर और शिंगल्स। तो ज़ोस्टर हमारे पास वेरिसिला ज़ोस्टर वायरस का रीएक्टिवेटेड और जो लेटेंसी के बाद इन्फेक्शन है, उसको हम ज़ोस्टर और शिंगल्स कहते हैं। Herpes zoster present is a painful vesicular rashes typically localized to a single dermatome. Very important diagnostic feature used clinically. An area of skin supplied by a single nerve. The disease is more common in older adults and immunocompromised individuals. Herpes zoster, commonly known as shingles, is a reactivation of the Varicella zoster virus. It is not reinfection, it is reactivation. The same virus that caused chicken pox. After an individual recovers from chickenpox, Varicella zoster remains dormant in the sensory nerve ganglion and can reactivate later in life, leading to shingles. अच्छा, दिस इज द क्लिनिकल पिक्चर। जब वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि कौन सा इन्फेक्शन है, तो आई आई मैं श्योर था कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे, लेकिन अब यहाँ पर आप किस तरह आइडेंटिफाई कर लेंगे? देखो, एक स्पेसिफिक डर्माटोम, यहाँ से फिर डर्माटोम की सप्लाई चेंज होती है, तो मिड लाइन से एक साइड तक, ये पिलेट में भी मिड लाइन से एक साइड तक हो सकता है, चेस्ट में भी होता है। ये एक स्पेसिफिक डर्माटोम को फॉलो करेगी। अगर ऑप्थेल्मिक डिवीजन इन्वॉल्व है, तो ऑप्थेल्मिक डिवीजन को फॉलो करेगी। अगर मैक्सिलरी डिवीजन इन्वॉल्व है, तो मैक्सिलरी, अगर मैंडिबुलर डिवीजन है, तो मैंडिबुलर डिवीजन्स को ये जो रैशेज़ है या वेसिकल्स है या जो भी अपीयरेंस है, वो एक स्पेसिफिक डर्माटोम तक होंगे। जो क्लिनिकल पिक्चर है, मिड लाइन को क्रॉस नहीं किया है। अगर ये पैरेट भी होता, तो फिर भी मिड लाइन को क्रॉस नहीं करता। जो स्पेसिफिक डर्माटोम का जितना भी सप्लाई है, उस ट्रैक को फॉलो करेगी। सो दिस इन्फेक्शन इज कॉल्ड shingles or zoster herpes zoster, which is caused by Varicella zoster virus, herpes type 3 virus. Herpes zoster commonly has a prodromal period of 2 to 4 days when shooting pain, paresthesia, burning and tenderness appear along the course of the affected nerve। देखो, एक बहुत ही पेनफुल कंडीशन है। देखो, विरसीला हमारे पास एक इची कंडीशन था, लेकिन वहां पर पेन नहीं था, पेन बहुत ही कम था। यहाँ पर बहुत ही सीवियर पेन होगा एलॉन्ग स्पेसिफिक डर्माटोम। जितने भी क्लिनिकल फीचर्स होंगे वो एक स्पेसिफिक डर्माटोम को फॉलो करेंगे। Unilateral vesicles on erythematous base then appear in clusters chiefly along the course of the nerves, giving the characteristics
clinical picture of single dermatome involvement. Where herpes zoster may also occasionally affect motor nerves. herpes zoster देखो herpes zoster और shingles एक ही नाम है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना. Of the sacral region may cause paralysis of the bladder. The extremities and diaphragm have also been paralyzed during episode of herpes zoster. तो देखो अगर फॉर एग्जांपल डायफ्राम आपका पैरालाइज हो जाए या आपका ब्लैडर पैरालाइज हो जाए तो अगर डायफ्राम पैरालाइज हुआ तो आपका इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन नहीं होगा तो आप इवन पेशेंट डाई भी हो सकता है. इस तरह अगर ब्लेडर है तो वो भी सीवियर जो पोस्ट रीनल कॉम्प्लिकेशंस है जो कि एक एकेआई में एक्यूट किडनी इंजरीज में आते हैं वो भी हो सकते हैं जो कि ब्लेडर को पैरालाइज करेंगे तो ब्लेडर काम नहीं करेगा तो शिंगल बहुत ही डेंजरस इन्फेक्शन है. The most common complication of herpes zoster is post-herpetic neuralgia. Remember this, very important. Post-herpetic neuralgia. एमसीक्यूज में पूछा जाता है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि पोस्ट हर्पेटिक न्यूरोलजिया कौन से वायरस के साथ होता है. मे बी आप कह लें कि हर्पीज, यस इट इज हर्पीज बट कौन सा हर्पीज, हर्पीज टाइप 3. लेकिन वेरेसिला जूस्टर में फिर जूस्टर का जो इन्फेक्शन है वो फॉलो करता है पोस्ट हर्पेटिक न्यूरोलजिया के साथ, which is defined as a pain remaining for over a month after the mucocutaneous lesion have healed. Although some clinicians do not use the term post-herpetic neuralgia unless the pain has lasted for at least 3 months after the healing of the lesions. तो देखो जब हमारे पास जूस्टर इन्फेक्शन हील हो जाए तो पोस्ट हर्पेटिक हर्पीज के बाद जो इन्फेक्शन है जो कि 3 मंथ से इवन ईयर्स भी ले सकता है जो कि एक पेनफुल कंडीशन है. क्लिनिकल पिक्चर हमारे पास नहीं होगा लेकिन फिर भी इन्फेक्शन सॉरी पेन होगा तो हमारे पास फिर जूस्टर या पोस्ट हर्पेटिक न्यूरोलजिया का पेन होगा. दिस इज द क्लिनिकल पिक्चर जिसमें अप्थेल्मिक डिवीजन इन्वॉल्व है, सिंगल डर्माटोम इन्वॉल्व है, मिड लाइन को क्रॉस नहीं किया, विजिकल्स भी है, अल्सर्स भी है, मेक्यूल्स भी है, ये पेनफुल भी होगा. सो दिस इज द क्लिनिकल पिक्चर ऑफ herpes zoster virus. Herpes zoster virus, one of the divisions of the trigeminal herpes zoster involves one of the divisions of the trigeminal neuron in 18 to 20% of the cases, but the ophthalmic branch is affected several times more frequently than the second or third divisions. Herpes zoster of the first division can lead to blindness secondary to coronal scarring and should be managed by an ophthalmologist. Facial and intraocular lesion are characteristics of herpes zoster involving the secondary and third division of the trigeminal nerves. देखो सिनारियो बनाई जा सकती है कि हम एक पेशेंट है जिसमें ओरल अल्सरेशन है और अप्थेमोलॉजिस्ट का रिगार्ड अप्थेमोलॉजिस्ट का ओपिनियन चाहिए तो वो कौन सा इन्फेक्शन हो सकता है तो आपने पेशेंट डिजीज याद रखना है, आपने शोगन सिंड्रोम याद रखना है जिसमें इन सारों में जूस्टर का इन्फेक्शन याद रखना है जिसमें अप्थेमोलॉजिस्ट के साथ हमारा ओपिनियन चाहिए. Facial and intraoral lesions are characteristics of herpes zoster involving the second and third. ये हो गया. Each individual's oral lesions of herpes zoster resembles lesions seen in the herpes simplex infections. The diagnosis is based on the history of pain and the unilateral nature of the segmental distribution of the lesion. So, pain and unilateral nature and segmental distribution of the lesion is diagnostic clinically. Pulpal necrosis and internal root disruption are also seen related to herpes zoster. In immunocompromised patients, large chronic herpes zoster virus lesions have been described that have led to the necrosis of underlying bone and exfoliation of the teeth. Herpes zoster of the geniculate ganglion. अच्छा, Ramsay-Hunt syndrome is a rare form of a disease characterized by Bell's palsy, unilateral vesicles on the external air and vesicles of the oral mucosa. तो आराम से हंट सिंड्रोम हमारे पास वेरेसिला जूस्टर इन्फेक्शन के साथ रिलेटेड है इसमें क्या होंगे, बेल पाल्सी होगा, यूनिलेटरल वेसिकल्स होंगे और जो कि एक्सटर्नल एयर में भी होंगे और ओरल म्यूकोजा में होंगे. तो आराम से हंट सिंड्रोम associated with zoster infection. It is characterized by bell palsy, unilateral vesical lesions, and vesicles of the oral mucosa. तो आराम से हंट सिंड्रोम और आपने जो पोस्ट herpetic neuralgia है वो याद रखना है. Diagnosis almost मैंने बता दिया. Diagnosis is usually based on the characteristic appearance of the rashes and its distribution of the lesions. Confirmation can be done through PCR testing of the lesion swabs, direct fluorescent antibodies testing, or viral culture. Serology test can detect it, herpes zoster virus antibodies. तो हमारे पास वही PCR है, immunofluorescent है और serology है. Treatment क्या है? Antiviral therapy है, like acyclovir, valacyclovir, or famciclovir. All these are the antiviral medication which can use for
ज़ोस्टल इन्फेक्शन, पेन मैनेजमेंट देखो पेन इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि हमने कम करना है। कैन बी अचीव्ड विद ओवर द काउंटर पेन रिलीवर एसिटामिनोफ़ेन एंड इबुप्रोफेन। एस्पिरिन हम नहीं देते, क्यों नहीं देते? ओआरएस सिंड्रोम काज़ कर देता है। एसिटामिनोफ़ेन हमारे पास पैरासिटामोल है, इबुप्रोफेन NSAID है। प्रिस्क्रिप्शन पेन मेडिकेशन एंड टॉपिकल एजेंट जस्ट लाइक lidocaine, patches lidocaine is local anesthetic. Corticosteroid, sometimes used to reduce inflammation and pain, though their use is controversial. Post-herpetic neuralgia management include anticonvulsants, gabapentin, pregabalin, tricyclic antidepressant, amitriptyline, and topical treatment capsaicin cream. तो ये हमारे पास पोस्ट herpetic neuralgia के साथ फिर हमारे पास जो न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम्स है उसको काउंटर करने के लिए हम गाबापेंटिन देते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, एंटी कन्वल्सिव एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट देते हैं लाइक इमिट्रिप्टाइलिन, कार्बामेज़ेपिन भी दे सकते हैं। तो ये पर डिपेंड करता है, तो आपने ये ट्रीटमेंट रिजीम याद रखना है। अच्छा, दैट्स ऑल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्साइटिंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो व्हिच इज क्विज टाइम। सो लेट्स पुट योर नॉलेज टू द टेस्ट एंड स्टार्ट नाउ। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग द क्विज or MCQ, a kind request, please subscribe this channel and like this video. Let's start the MCQ. Number first is Emma, a 7-year-old girl, is brought to the pediatricians with a fever, headache, and widespread itchy rashes. Prodromal symptoms है. The rash started on her face and torso and has now spread to her arms and legs. On examination, you notice that the rash consists of various stages of lesions. देखो एक हमारे पास मिड लाइन से शुरू हो रहे हैं और पेरिफेरी तक जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास वेरियस स्टेजेस ऑफ लीजेंस है, मींस डाइवर्स लीजेंस है, इंक्लूडिंग रेड स्पॉट्स, ब्लिस्टर्स एंड crusted scabs. Emma's mothers mentioned that Emma has not received the chickenpox vaccines. What is the most likely diagnosis? अगर यहाँ पर ये स्टेटमेंट नहीं होता तो आई एम श्योर यू विल आइडेंटिफाई दैट दिस इज चिकन पॉक्स इन्फेक्शन। आइडेंटिफाइंग फीचर्स कौन से हैं? एक तो हमारे पास प्रोड्रोमल साइंस है। अच्छा, प्रोड्रोमल साइंस मीजल्स के साथ भी हो सकते हैं, स्कारलेट फीवर के साथ भी हो सकते हैं। स्कारलेट फीवर में क्या होगा? स्कारलेट फीवर जो है उसमें जो लीजन्स होंगे वो पेरिफेरी से शुरू होके मिड लाइन तक आएंगे। चिकन पॉक्स में या विरुसुला में जो लीजन्स है या जो हमारे पास जो रैशेज है वो मिड लाइन से शुरू होके पेरिफेरी तक जाएंगे। तो ये एक आइडेंटिफाइंग फीचर्स है। इसके अलावा वेरियस क्लिनिकल स्टेजेस जो है ये हमारे पास क्या है, एक इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक फीचर्स है। इची रैशेज़ है, अगर सिंपल रैशेज़ होते तो फिर भी कन्फ्यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर इची रैशेज़ है। दिस इज़ द वेरेसिला चिकनपॉक्स इन्फेक्शन। अच्छा, John's a 65-year-old man present to his doctor with a painful burning sensation on the right side of his chest. A few side, a few days later, he develops rashes in the same areas. On examination, you observe a cluster of vesicle on the erythematous base following a dermatomal distribution on the right side of the chest. Key statement enough है dermatomal distribution, so it would be herpes zoster or shingles. दिस इज फॉर यू। आप इसने अभी आपने आइडेंटिफाई करना है। लोकस, a 4 year old boy comes to, देखो एज को भी देखो, अगर एज एक भी आइडेंटिफाइंग फीचर्स है। ऑलवेज रिमेंबर दैट बिफोर डायग्नोजिंग फर्स्ट सी हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। एज भी एक इंपॉर्टेंट है, मेल है फीमेल है, एज कितना है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक फीचर्स है। The rash initially appeared on his back and spread to the face and limbs. On examination, you see multiple lesions in different stages of development, including red spots, blisters, and crusted sores. There's another report that several children at Locust Public School recently had similar symptoms. What is the most likely diagnosis? तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है। अगर आपको इसके आंसर नहीं आ रहा तो मैं कमेंट्स में आंसर पिन कर दूंगा, एक्सप्लेनेशन भी ऐड कर दूंगा कमेंट्स में। सो दैट्स ऑल। अच्छा, एक एमसीक्यूज और भी है जो कि आपने आइडेंटिफाई करना है। स्टेटमेंट को पढ़ ले, वीडियो को पॉज कर ले, स्क्रीनशॉट ले और आंसर बता दे। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपने वीडियो से कुछ भी सीखा है, एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहते हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।